साहित्य, कला और संस्कृति जगत से जुड़ी गतिविधियों के वीकली राउंड अप वाइब्रेंट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। चलिए आपको बताते हैं आज वाइब्रेंट भारत में हम आपको कहां लेकर चलने वाले हैं। आज के सफर में हम चलेंगे राजस्थान, पंजाब, गोवा और राजधानी दिल्ली। तो शुरू करते हैं आज के वाइब्रेंट भारत का सफर। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रंगीली संस्कृति और समृद्ध विरासत की धरती राजस्थान, जहां राजधानी जयपुर में पिछले दिनों साहित्यिक महोत्सवों में से एक अलग मुकाम रखने वाले खास लिट फेस्ट का आयोजन किया गया। हम बात कर रहे हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 की। इस बार जयपुर लिट फेस्ट का ये 15वां साल है, जिसे जश्न की तरह सेलिब्रेट किया गया। आइए जानते हैं क्या खास रहा इस बार के जयपुर लिट फेस्टिवल में। हमारी ओर से सभी को 2022 का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए स्वागत है। पिंक सिटी पिछले दिनों एक बार फिर जयपुर साहित्य महोत्सव के रंगों से गुलजार रही। साल 2022 के लिए आयोजित जयपुर लिट फेस्ट का ये 15वां संस्करण हाइब्रिड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के मेल के साथ प्रशंसकों के बीच उतरा। लिट फेस्ट के दौरान अलग अलग सेशंस और एक्टिविटीज के जरिए साहित्य, कला और संस्कृति प्रेमियों को मौका मिला देश दुनिया के मशहूर लेखक, वक्ताओं और कलाकारों से अलग अलग विषयों के बारे में गहनता से जानने और समझने का। आइए कराते हैं आपको झलकियों और प्रतिक्रियाओं के जरिए इस महोत्सव की सैर। It's just fantastic to be back at the Jaipur Literature Festival after 2 long years, my God. Just to be back in Jaipur. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को बहुत सारी बधाइयाँ 15 साल पूरे करने के लिए। There is such happiness that I see here. People are so happy to be here. So I think it's just 15 years. There are many more years to come ahead, and I wish them all the very best. And today they are such a big brand, and I'm so glad to be here, and I just hope they keep blooming with every passing year. Literature festivals are really good because it's the only place where, as a writer, you get treated like a rock star. This is an audience which likes to listen to what we have to say as authors. It likes to engage with us, not simply while during the session, but also afterwards when the session is over. Here at JLF, just gaining some exposure, gaining some experience hearing authors and stalwarts in their fields, trying to just broaden my horizons a little bit. People are sitting, people are on the stage, but it's open on all sides. And that atmosphere of free-wheeling, free-blowing ideas and thoughts is what defines this festival. Books and music are two of my favorite pleasures in life. Festival that brings two of these ultimate forms of human expression together is just wonderful. We were there performing on the Jaipur music stage, and it was magical. It's been 3 years that we've had such an audience. With the pandemic, the live gig scenes were not there. Just seeing all the audience there singing along, felt like a huge karaoke set where everyone was singing along. The vibe was good, magical, and there was a lot of love in the air. I think I have to commend Teamwork Arts for the way they're constantly trying to push music and to push art forms to people. Then at a cultural level, you see a mix of India here. Then at an intellectual level, you see a mix of fiction, non-fiction, academic, political, all sorts of authors coming together. So it's a very diversely satisfying experience right now.
me who doesn't know much about literature, this is the first time when I sat for full 50-minute session, I really understood what is happening. It's really nice opportunity for, especially for the students of Jaipur, and people from all over the world come here, and I'm proud that it happens in Jaipur every year. It's great to see young people really interested, and quite a few of them are asking quite intriguing questions, and the sessions were all quite interesting. It's been amazing. We've been able to dip in and out of the talk, so we're getting a lot out of it, but also there's so much for him to see, you know, all the elephants and colours and flowers. It's a wonderful place to visit with a child. So yeah, we will definitely be back. Coming from outside of Jaipur, it allows us access to all the handicrafts by these local artisans, along with a very good holistic overview of music and literature. So couldn't have been a better place, and looking forward to the upcoming season. You know, Jaipur Lit Fest wouldn't be complete if the Jaipur is not added to it. And you know, Rajasthan is a riot of colors. Wherever you look, you find pinks and orange and yellow and ochre. It's about dances, it's about music, it's about painting, it's about great history. I think that JLF has become a literary milestone in India. I think it will be very difficult to talk about our culture, particularly our book culture, without reference to JLF. It's not just books, it's the whole experience which makes it one of its kind. You can't get this anywhere else, so yeah. पिछले पूरे सप्ताह देश भर में रंगों का पर्व होली बेहद जोश और उल्लास के साथ मनाया गया। होली एक ऐसा त्योहार है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रंगों में डूबी होली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक मिसाल है विविधता में एकता की। अपने मूल भाव में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश लिए ये त्योहार पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आज वाइब्रेंट भारत में हम आपको दिखाने जा रहे हैं होली से पहले और बाद में मनाए जाने वाले ऐसे ही उत्सव जिन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में थोड़े अलग तरीके से मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे पंजाब के रूपनगर में श्री आनंदपुर साहिब के होला मोहल्ला पर्व और टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा के शिमोत्सव में बिखेरे देश की सांस्कृतिक विरासत के लोक रंग दोनों उत्सव की खास झलकियां सिर्फ आपके लिए। सिखों के पवित्र धर्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से मनाया जाने वाला एक खास उत्सव है होला मोहल्ला। पंजाब के रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब का ये प्रसिद्ध उत्सव एक मेले की तरह आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्वयं इस मेले की शुरुआत की थी। इस 3 दिवसीय उत्सव के दौरान एक जुलूस में घोड़े पर सवार होकर निहंग हाथ में निशान साहिब उठाए तलवारों के करतब दिखाकर साहस का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स, एक्रोबैटिक मिलिट्री एक्सरसाइजेज और पगड़ी बांधने जैसे कई प्रदर्शन भी आयोजन का हिस्सा होते हैं। गोवा समुद्री खूबसूरती, हेरिटेज चर्च और कार्निवल के रंगीन विरासतों के साथ देश दुनिया के पर्यटकों को हमेशा से आकर्षित करता आया है। लेकिन पूरे देश में होली की तरह ही गोवा में भी इसी से मिलता जुलता एक लोक पर्व
बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे, जिसका नाम है शिग्मोत्सव। ये एक कार्निवल की तरह आयोजित किया जाता है। कार्निवल की तरह आयोजित ये फेस्टिवल गोवा के हिंदुओं द्वारा बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। जिसमें गोयन हिंदू परंपराओं और पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। शिग्मोत्सव ये गोवा का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि बसंत ऋतु के बाद, फागुन के बाद मनाया जाता है। और इसमें जो है पालकी भी घूमती है, पारिवारिक कुल देवता होते हैं उनको भी लेकर के ये लोग घुमाते हैं। बहुत अच्छा फेस्टिवल। शिग्मो जो है हमारा पारंपरिक उत्सव है, इससे हमारा कल्चर को बढ़ावा मिलता है। यूथ जनरेशन जो रहता है, जो आजकल जिसको पता नहीं रहता है व्हाट इज़ हमारा संस्कृति जो क्या है, वो पता चलता है। गोवा में शिग्मो के जरिए लोग वसंत यानी स्प्रिंग सीजन के आगमन का स्वागत करते हैं और सर्दियों को अलविदा कहते हैं। पूरा उत्सव रंग, कलरफुल कॉस्ट्यूम, फोक म्यूजिक और डांस के साथ मनाया जाता है। शिग्मो के दौरान पूरे पणजी की सड़कों पर ढोल की थाप पर लोक गीतों की धुन पर नाचते गाते लोगों का नजारा बेहद आम है। इसके अलावा इस दौरान निकाली जाने वाली झांकियां और आकर्षक परेडें त्योहार का प्रमुख हिस्सा है। और अब रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां देश की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के विभिन्न रूप देखने को मिले एक खास उत्सव क्लाइडोस्कोप में। संगीत नाटक अकादमी का 10 दिन का फेस्टिवल 21 मार्च से शुरू हो चुका है, जो आने वाली 31 तारीख तक लगातार जारी रहेगा। ये फेस्टिवल एक अवसर है, एक मौका है देश की असली विरासत यानी दुर्लभ वाद्य यंत्र, संगीत कलाओं और मनोरंजन के पारंपरिक तरीकों को जानने का, जो भारत की विविधता का मूल है। समृद्ध विशाल भारतीय संस्कृति की विविधता ही इसे दुनिया भर में अलग बनाती है। इसी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को जश्न की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है क्लाइडोस्कोप उत्सव के जरिए। चादर गए चादले भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए संगीत नाटक अकादमी इस अनोखे उत्सव को 21 मार्च से ही मना रही है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, वर्कशॉप, थिएटर वर्कशॉप, डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर्स के जरिए भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक संपदा को एक बार फिर से दर्शकों के सामने रखा गया।
महोत्सव की शुरुआत पारंपरिक तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ हुई। फेस्टिवल में अलग अलग सेशंस के जरिए देश के अलग अलग क्षेत्रों की पारंपरिक गायन, वाद्य और प्रदर्शन कलाओं को कलाकारों ने लोगों के समक्ष रखा। इसी कड़ी में राजस्थान की पारंपरिक शिल्प कावड़ पर भी कार्यशाला आयोजित की गई। इसके अलावा मैसूर की सीतारामा की प्रस्तुति भी प्रभावशाली रही। मंथरे 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 नन्नನ್ನು ಪೀಡಿಸಬೇಡ ನೀನು ನೀನು ಜಾಣೆ ಮಂಥರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಸುಂದರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಖಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಳಸುಳಿವುಗಳು ನಿನ್ನಷ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನಾನೇಕೆ ಹೀಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳೆ ಹೇಳು ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾ ಹೌದು ಕೇಳು ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕು। देश के सुदूर और ग्रामीण अंचलों में लंबी पारंपरिक विरासत के लिए विलक्षण वाद्य यंत्रों की संगीतमय प्रस्तुतियां भी देखने लायक रही। पारंपरिक तरीकों से बच्चों का मनोरंजन करती आई स्टोरी टेलिंग आर्ट का मुख्य जरिया रही बायोस्कोप की खुद की जर्नी। कलाकारों ने दर्शकों के सामने जिसे बहुत ही तरतीब के साथ रखा। जो मतलब इसका पहला परिणाम हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, तो मैम वहाँ से फिर ये चलता गया। अभी ये पहले ज़माने के जो बायोस्कोप थे उनमें ना लाइट थी ना कोई साउंड सिस्टम था। इसके अलावा कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में देश भर की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के एक खास बुक लॉन्च के कार्यक्रम में। एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति के संदेश के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन द आरएसएस वे किताब का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। किताब रत्न शारदा और डॉक्टर यशवंत पाठक द्वारा लिखित है, जिसका प्रकाशन गरुड़ प्रकाशन ने किया है। ये जो एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति, ये हमारी कन्विक्शन है, ये हमारा नारा नहीं है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर भाषा मत पंथ, हर प्रकार के रहन सहन खान पान वाला व्यक्ति इस देश के अंदर एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति, ये जो सारी हमारी सोच बनती है, जो हमने काम किया है, उसके मूल में ये है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की और हमारा संघ का राष्ट्र को लेकर जो हमारी कल्पना है, ये जो वेस्ट में राष्ट्र की कल्पना शुरू हुई, जो सिटी स्टेट से प्रारंभ हुई, एम्पायर्स में आई, थियोक्रेटिक स्टेट की ओर बढ़ी, थियोक्रेटिक स्टेट से वो धीरे धीरे करके आज का मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर आया और अनेक प्रकार की उसके प्रकार बने। हमारा राष्ट्र वैसा नहीं। हमारी राष्ट्र की कल्पना हमारी एक हजारों साल की एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको हम कहते हैं, ये उसकी एक कल्पना। I chose to write on RSS because for the people outside the RSS, not within the RSS, because I thought within RSS they believed in everything and my writing will not be required for them, and those outside need to know about RSS. In the meantime, a lot of things have changed. From being a saffron terror organization, at least people want to listen about RSS. People want to know about RSS.
I've met many people who say that they have changed their views after reading my books, and that really is a big satisfaction for me. संघ की जो 100 साल की यात्रा है उसका नतीजा इतना बड़ा है, तो जब संघ के क्रिटिसिज्म के बारे में हम सोचते हैं तो दो पक्ष ध्यान में रखना है. एक, there are critics, no doubt. Not all those critics are not informed properly about RSS. There are many of them very well informed, yet they want to be critics. One aspect. But never forget, there is half of India which today stands by RSS. क्रिटिक्स है तो उनकी तरफ हमारा देखने का दृष्टि यही है, को आपको समझना और होगा. इसलिए ऐसे कभी किताब आज बाहर आना भी चालू हो गया है. और इस सप्ताह के लिए आपका सवाल, आपको बताना सिर्फ इतना है कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे विजुअल्स किस राज्य से संबंधित हैं और इसका नाम क्या है. आप अपने जवाब स्क्रीन पर दिए पते पर भेज सकते हैं. सही जवाब देने वालों के नाम हम अपने अगले एपिसोड में शेयर करेंगे. इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई ऐसा महोत्सव, लोक पर्व या खास आयोजन होता हो जिसमें देश की संस्कृति की झलक मिलती हो, उसकी जानकारी और संबंधित वीडियो हमें मेल करें. वाइब्रेंट भारत में आज के लिए इतना ही. वाइब्रेंट भारत में आपसे फिर भेंट होगी. फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी. नमस्कार.